Students, today we shall understand the concept of Coulomb's law under the heading of electrostatics. But you know what is Coulomb's law? It is nothing but an analogy. It is nothing but an analogy of Newton's law of gravitation, what we have studied in 11th class. And that states that force between two masses are given such that force is directly proportional to the product of the masses and the square of the distance between them. But whenever we talk about its constant, we will get the value as force constant and gravitational constant g as the proportionality constant. Thus, we will get the relation as F equal to g m1 m2 by d square. In the similar fashion, we will replace these masses with the charges under the concept of Coulomb's law. So exactly Coulomb's law discusses about the charges, expresses the concept of charge and the force of attraction or repulsion between them. So let's see, students, we will be starting with the Coulomb's law today. Coulomb's law states that, students, just take notice of this, it states that the force of attraction between in fact or repulsion between any two masses, between any two charges kept at r distance apart in air or vacuum such that two charges are there. Let's see, student. Two charges are there, Q1 and Q2, suppose. The distance between them, say r. If two charges are apart, r distance apart from each other in air or vacuum, then according to the concept of Coulomb's law, it is given as force directly proportional to the product of the charges first. Second, force is inversely proportional to the square of the distance between them. In case we sum these two values together, यदि हम लोग इनका sum up कर लें, then what do we get? F directly proportional to Q1, Q2, and then by R square division. But as a proportionality constant, we will put F equal to constant K Q1, Q2 by R square we will get. I think everybody must have understood this part. Now, what is K here? K is a constant for the field, electric field. So K is equal to, K is given as where? K is given as 1 upon 4 pi epsilon naught. 1 upon 4 pi epsilon naught. What is epsilon naught? As a whole, its value is given as 9 into 10 to the power 9 unit. But if we talk about the epsilon naught, क्या होता है epsilon naught? Epsilon is the Greek term, Greek unit, and it's called permittivity of free space. Permittivity of free space. Students, permittivity of free space का मतलब होता है कि जब लाइंस ऑफ फोर्सेस जो चार्जेस से निकल रही हैं, वो यदि लाइंस ऑफ फोर्सेस मीडियम से पास होती हैं, तो मीडियम अपने में से उस लाइंस ऑफ फोर्सेस को कितना परमिट करता है, that is actually known as permittivity of the free space. I think everybody must have understood this part.
सो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस मतलब होता है इट इज अलाउइंग lines of forces, electrical lines of forces or field lines to pass through itself. So that is what permittivity of the medium. So exactly when we talk about epsilon naught, it means epsilon naught must have some value as gravitational constant has. So epsilon naught equal to epsilon naught क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 into 10⁻12 unit. This is all SI unit students remember. So ये हमारे पास कंसेप्ट है चार्ज का और ये मेरे पास कांस्टेंट का कंसेप्ट है. तो ये आप लोगों को सबको समझ में आया होगा. तो ये ही कहलाता है कूलम्स लॉ. और तुम्हें मालूम है कि कूलम्स लॉ या कोई भी फोर्स हमेशा हम लोग न्यूटन में लेते हैं. सो दैट्स इट्स वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज न्यूटन. सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ. अब बढ़ते हैं इससे भी आगे. चार्ज यूज कर रहे हैं हम लोग आगे. तो कूलम्स लॉ में चार्जेस होते हैं. चार्जेस होते तो चार्ज टू टाइप्स होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्जेस भी अपने में से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालती हैं. तो निकालती है पॉजिटिव चार्जेस, तो ये आउटवर्ड होती है लाइंस ऑफ फोर्सेस. दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज आउटवर्ड. These lines of forces are always outward. मतलब ये बाहर की तरफ lines of forces निकलती हैं. तो जिस डायरेक्शन में lines of forces जाती हैं उसी डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन पढ़ेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस. इसी प्रकार से नेगेटिव चार्जेस जो होती है वो इनवर्ड फील्ड को दिखाता है. दैट शोज इनवर्ड फील्ड. रिमेंबर स्टूडेंट, दैट शोज इनवर्ड फील्ड. तो इनवर्ड फील्ड मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस यदि इनवर्ड है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी. तो ये कंसेप्ट होता है चार्जेस का. अब इससे भी आगे देखें इसकी यूनिट. तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है इनका. तो चार्ज जो है, चार्ज का जो यूनिट है, यदि अपन एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट जो होता है इसका वो होता है कूलम. कूलम जो साइंटिस्ट है जिसके नाम से लॉ है, he had given the unit itself कूलम. एंड इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम, या फिर इसको नॉर्मल तरीके से लिखते हैं हम लोग ESU. ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. और इनके बीच में यदि हम रिलेशन देखें तो 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10⁻9 ESU होता है. दिस द यूनिट फॉर कूलम. चार्ज की यूनिट है. दैट इज यू हैव टू रिमेंबर फॉर एवर. जब तक हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, you should be able to understand and you have to put that thing in your mind forever. Understood students? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. तो अब हम लोग समझे इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट a phenomena, a process, a concept of which depends upon the force. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि फोर्स पे डिपेंड करता है. कैसे, तो चलो समझे. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग पहले समझते हैं, देन विल डिफाइन. तो पहले समझे कि मेरे पास मान लो कोई ऑलरेडी एक चार्ज रेंज फील्ड है. चार्ज की एक रेंज की एक फील्ड है, एक फील्ड रेंज है जिसकी रेंज वैल्यू दी हुई है R. इसकी रेंज वैल्यू चार्ज की दी हुई है R. अब यदि मैं किसी और दूसरे चार्ज को, ये तो ऑलरेडी एक चार्ज की रेंज है, मैं किसी दूसरे चार्ज को जो कि अपन बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज को यदि मैं इस रेंज तक लाता हूं, टेस्ट चार्ज को इस रेंज तक लाता हूं, इस रेंज तक लाने के लिए और लाने के बाद
इसको यहां तक चला के लाता हूं मैं, तो ऐसे में जब इस चार्ज को यहां तक ले आऊंगा तो इस टेस्ट चार्ज और इस चार्ज की फील्ड की बीच के जो डिस्टेंस है वो कम से कम r तो होगी, और इतने डिस्टेंस पर जब ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज अपने खुद के ऊपर इस चार्ज फील्ड के कारण से किसी भी प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज experienced by the unit test charge is known as electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे आप लोग? It's defined as the force per unit charge experienced by force per unit charge experienced by a unit test charge by the test charge when it's brought in the field range of a given charge. This is a given charge, टेस्ट चार्ज है ये। जब इसे हम इस रेंज तक लाएंगे तो जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पे वो जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये टेस्ट चार्ज, किसके कारण से, इस चार्ज के कारण से, उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। that is electric field E, and it is given as force per unit charge. Student, it is given as force पर यूनिट चार्ज। अब अपन बात करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज की। तो देखो ध्यान से, फोर्स तुमने अभी देखा, यहां पर हमने देखा था सिंस फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था। अब एक चार्ज को मैं क्या ले लेता हूं, एक चार्ज Q1 को मान लेता हूं, मान लो Q, दूसरे चार्ज Q2 को मान लेता हूं Q नॉट। के तो हमारे पास वही है, आर भी वही है डिस्टेंस। तो यहां पर इस कंडीशन में मेरे पास जो नया फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, नया जो फोर्स मिलेगा वो मिलेगा के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये दोनों को कैंसिल कर दिया हमने, क्या मिलेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स क्या है मेरे पास, देखो फोर्स है मेरे पास के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दो चार्ज का प्रोडक्ट, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास, सिंगल चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इतना समझ में आ गया हो तो इसकी यूनिट देख लें अपन। इसकी यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन पर कूलम। कैसे, आप यहां देखो, फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स होता है हमारे पास न्यूटन और चार्ज होता है कूलम। तो अपन जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो विल गेट न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरल फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड द concept formula is kq by r square. Students, I think you must have understood this part. Now we will be moving to the next part again. आगे का कंसेप्ट समझो। आगे का कंसेप्ट हमारे पास ये है कि मेरे पास एक नया कंसेप्ट है इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल स्पेशल कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल स्पेशल कुछ नहीं है, ये हमने 11th क्लास के अंदर में केमिस्ट्री में पढ़ा हो। डाई मतलब दो, और पोल यानी दो पॉजिटिव नेगेटिव का एंड्स। तो हमारे पास यदि दो पोल अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव का एक सेपरेशन में है तो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो हाउ डू वी डिफाइन दिस, लेट्स सी। इट्स डिफाइंड एज द
system of two equal and opposite charge, equal and opposite charge kept at finite distance, kept at finite distance from each other, kept at finite distance from each other in air or vacuum, in air or vacuum. Student, you should be able to understand this concept. एयर और वैक्यूम में भी कोई दो ऑपोजिट नेचर के बट सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज को यदि पास पास रखा जाए तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल बोलते हैं. तो हमारे पास एक चार्ज है, मान लो ऐसा एक चार्ज है, ये प्लस है क्यू और ये है माइनस क्यू. मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए बट नेचर में ऑपोजिट होने चाहिए. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है आपको याद करना पड़ेगा. सेंटर होता है डाइपोल का, सेंटर से एक तरफ को होता है एल, सेंटर से दूसरी तरफ भी एल होता है. सो दैट इज एक्चुअली 2l एज अ होल डिस्टेंस फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर. सो दिस एंटायर सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज डाइपोल. स्टूडेंट अब बढ़े तो यहां पर एग्जांपल्स देख लें डाइपोल्स के. डाइपोल के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, तुम लोग कितनी बार पढ़ चुके होंगे. पहला एग्जांपल जैसे Na प्लस Cl माइनस, एक डाइपोल. एक है जैसे KBr प्लस माइनस, एंड मेनी मोर, HCl, एंड नंबर ऑफ such compound, such conditions are actually considered as dipole. आपके घर में जो सेल होता है, सेल मतलब जो इलेक्ट्रिकल सेल होता है, बैटरी, वो भी एक डायपोल ही है क्योंकि वो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दोनों एंड्स पे. सो दैट्स व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज अ डायपोल सिस्टम. अब बात आती है इससे भी आगे, तो हम लोग बात करें डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट, यदि हम डायपोल पढ़ रहे हैं तो डायपोल मोमेंट भी हमने जानना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा. एंड दैट हैज बीन टॉट you people in 11th class already. So that's why we will be understanding what dipole moment is. So its name suggests moment. moment उन सभी टर्म्स में जुड़ता है जो कि रोटेट कर सकते हैं अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, रोटेट कर सके, उसमें सभी में मोमेंट नाम का टर्म जुड़ता है. और जब मोमेंट नाम का टर्म जुड़ता है तो वो रोटेशन दिखाता है. दैट मींस डायपोल कैन बी रोटेटेड अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस. समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स? तो इससे आगे समझते हैं हम लोग. अब बात आती है डायपोल मोमेंट की. तो क्या है? तो मोमेंट में एक चीज जरूर होती है, वो चाहे किसी भी प्रकार का मोमेंट है, वो है डिस्टेंस. तो इट्स नेम इट्स डिफाइंड एज the product of either charge, दोनों में से कोई एक चार्ज लेना है, either charge and effective distance between them. Effective distance between them. Let's see students. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास इफेक्टिव डिस्टेंस क्या है? यहाँ 2l है. तो हमारे पास डायपोल को देते हैं हम लोग, शो करते हैं p नाम के टर्म्स से शो करते हैं. वेक्टर क्वांटिटी है ये. तो यदि चार्ज दोनों में से कोई एक लेंगे तो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा. सो बेटर वी शुड राइट इट एज पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब प्लस माइनस q. एक कोई चार्ज लेंगे एक बार इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 2l. सो एज अ होल, और भी में राइट, और p का मैग्नीट्यूड यदि हम ले लें so that becomes 2ql. That is 2ql. Whenever we talk about 2ql, we will always get dipole moment as a result. यूनिट इसकी क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, देखो स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट होती है चार्ज इंटू डिस्टेंस. मतलब क्या? कूलम मीटर
इसकी एसआई यूनिट ही लेते हैं हम लोग फिलहाल तो, कूलम मीटर, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, यदि आपने 11 में पढ़ा हो, इसको बोलते हैं डिबाई और डिबाई, इट इज कॉल्ड डिबाई। ये इसकी दूसरी यूनिट है जो केमिस्ट्री के अंदर में जनरली यूज करते हैं हम लोग, तो कूलम मीटर और डिबाई। तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिकल डायपोल भी समझ गए, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट भी समझ गए, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी समझ गए, कूलम्स फोर्स भी समझ गए हैं। तो ये सब यदि आपको मालूम चल गया है तो इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक you are well aware of these topics now, so we'll be meeting in the second or the next meeting videos afterwards. Thank you.